Assalamu alaikum dear students, class 11, unit equilibrium. और टॉपिक है applications of equilibrium constant. लेकिन एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे रिगार्डिंग द डायमेंशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज Kc और Kp. दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज डायमेंशनलेस. अब ये डायमेंशनलेस कैसे है? आजकल जो है in the new this nomenclature we can say that the concentration of these equilibrium the concentration is expressed as concentration जो हम express करते हैं in the form of mole per liter, वो हम लिखते हैं as activity. What is this activity? It is the molar concentration, or it is, if we talk of in terms of the pressure, it is the bar. इसको हम कहते हैं बार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन और फॉर द प्रेशर. एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन एंड प्रेशर. अब ये एक्टिविटी जो है ये एक्सप्रेस करती है कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, that's 1 mole per liter or 1 bar. It expresses the concentration in terms, expresses the concentration with respect to concentration or pressure with respect to a standard state. अब वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? फॉर कंसंट्रेशन इट इज 1 मोल पर लीटर एंड फॉर प्रेशर इट इज 1 बार. तो एक्टिविटी हम यूज करते हैं फॉर द कंसंट्रेशन और फॉर द प्रेशर. उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को हम लेते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, दैट्स द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर, or with respect to the standard pressure of that's 1 bar. So if we can say that 5 bar at pressure, 5 bar pressure, its equilibrium constant, that's Kp is equal to 5 bar divided by 1 bar. That is the activity. This bar and this bar will cancel out, that's Kp is equal to 5. So it is a dimensionless quantity. So Kp or Kc जो होता है, it's a dimensionless quantity because nowadays we express them in terms of activity. Activity में क्या होता है? वहाँ पर हम concentration और pressure को हम लेते हैं with respect to a standard state. That's the standard state for the concentration is 1 mole per liter and for the pressure it is 1 bar. Suppose we say 5 bar, it is Kp is given as 5 bar divided by 1 bar, that's equal to the 5 bar. So pressure is equal to the 5. Kp is equal to 5. So it is a dimensionless quantity. Similarly, if we have concentration of 0.5 mole per liter, so activity, it is expressed on activity. Kc को हम express करते हैं in terms of activity. Activity is equal to 0.5 mole per liter divided by 1 mole per liter. More per cancel out. Kc is equal to 0.5. So equilibrium constant is expressed in terms of equilibrium constant, whether that is the concentration. When we express in terms of concentration or pressure, it's a dimensionless quantity because we express them in terms of activity. Activity में हम express करते हैं concentration को with respect to a standard state, and इसी तरह से pressure को भी हम लेते हैं with respect to a standard pressure of 1 bar.
तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां से क्या निकल आता है कि Kp और Kc जो है दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो आप नटशल में याद रखोगे Kc and Kp are expressed in terms of the activity, while the concentration and pressure is expressed with respect to a standard state, and the dimensions come for the Kc and the Kp comes out to be a dimensionless quantity. Now we have the important to today's topic is that is the applications of the equilibrium constant. It has the following three applications such as or which are as follows. Applications of equilibrium constant, it has three important applications. Number one, to predict the extent of the reaction. Number second, to predict the direction of the reaction. Number third, to calculate the equilibrium concentration of reactants and products. These are three important applications of the equilibrium constant. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे to predict the extent of the reaction. इसका क्या मतलब है कि to predict the extent of the reaction. Equilibrium constant का जो magnitude होता है वो हमें बताता है whether the reaction it goes to completion or not. वो क्या है, वो ये है, for example हमारे पास reactant reaction है और reversibly gives me product. अब यहाँ पर आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R. अब इस वैल्यू K का वैल्यू जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. इसका मतलब ये है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. एंड जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारी रिएक्शन में उसका मतलब यह है कि रिएक्शन इट गोज टू द कंप्लीशन. दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इट predicts us whether the reaction goes to the completion or not. The magnitude of equilibrium constant gives us the concentration of reactants and products in the reaction mixture. The magnitude of the equilibrium constant gives us the extent of reaction. Extent of the reaction का मतलब ये है कि whether the reaction it goes to completion or not or it is at equilibrium. Number first point है इसमें if the value of equilibrium constant is very high. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है दैट इज वेरी हाई, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यही मैंने आपको बोला अभी, दैट्स आर इट रिवर्सिबली गिव्स मी प्रोडक्ट्स एंड K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इसका मतलब ये है अगर K का वैल्यू ज्यादा है इसका बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इट गोज टू द कंप्लीशन. नंबर फर्स्ट मोर द क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई एंड at that time concentration of products is much more
than reactants. That means here the forward reaction is favored. For example, हमारे पास reactions है, दो reactions है, उनका equilibrium constant बहुत ज्यादा है. इसका मतलब यह है कि reaction mixture में products की concentration ज्यादा है as compared to that of the reactants. For example, we have H2 gas plus Br2 gas. Reversibly gives me twice HBr gas. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू द 5.8 into 10 raised power 18. इतना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसका मतलब 10 raised power 18 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. More the value of the equilibrium constant, more is the concentration of the products in the reaction mixture and hence the forward reaction is favored. इसी तरह से हमारे पास दूसरी रिएक्शन है that is the H2 gas plus Cl2 gas reversibly gives me twice HCl gas. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट्स K is equal to into 4.0 and 10 raised power 31. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. इसका मतलब यह है कि रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन. इसका मतलब है कि सारे रिएक्टेंट जो है ऑलमोस्ट दे गेट कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. सो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा एट दैट टाइम the concentration of the products in the reaction mixture is very high as compared to the concentration of the reactants. Now the second important point in this application is if the value of equilibrium constant is in between 10 raised power minus 3 to 10 raised power 3 at that time वहाँ पर क्या होता है कि concentration of जो products की होती है या reactant they are comparable and the reaction जो है that is at equilibrium. If the value of equilibrium constant lies between 10 raised power minus 3 to 10 raised power 3. The concentration of reactants and products is comparable. जितने रिएक्टेंट्स है रिएक्शन मिक्सचर में उतने ही प्रोडक्ट्स भी हैं. दैट टाइम द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल सेकंड रिएक्शन जो है हमारे पास ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज Fe3 पॉजिटिव aqueous plus thiocyanide ion negative aqueous reversibly gives me FeSCN 2 पॉजिटिव aqueous. इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 138 at 298 केल्विन. टेम्परेचर पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है. इसका मतलब ये है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज ए कंपेरेबल वैल्यू है, नहीं ज्यादा है न कम है. इट इज इन बिटवीन. इसका मतलब ये है कि जितने रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स है उतने ही प्रोडक्ट्स है बिकॉज वी नो दैट K is directly proportional to the P and inversely proportional to the R. अब ये भी इतने हैं ये भी इतने हैं तो इसका ये मतलब है कि द रिएक्शन इट इज एट इक्विलिब्रियम. So if equilibrium constant has a comparable value has a value which lies between the 10 raised power 3 to 10 raised power minus 3 at that time the concentration of the reactants and the products in the reaction mixture is comparable. Now जो third है if the value of the equilibrium constant is least lower उस वक्त क्या होगा concentration of the ये कम है तो ये क्या होंगे ज्यादा होंगे रिएक्टेंट्स. एट दैट टाइम द रिएक्शन इज बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. मतलब कि रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की है प्रोडक्ट्स की कम है. दैट मीन्स रिएक्शन नहीं हो रही है. तो या अगर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वो फिर से कन्वर्ट होते हैं इनटू द रिएक्टेंट्स. सो
it shows that lesser the value of, the lower the value of the equilibrium constant, more is the concentration of reactants in the reaction mixture, and the reaction does not, and at that time the backward reaction is favored. If the value of equilibrium constant is number third, if the value of equilibrium constant is less than 10 raised power minus 3, the backward reaction is favored. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस O2 गैसियस फॉर्म में है दोनों, रिवर्सिबली गिव्स मी ट्वाइस NO इन द गैसियस फॉर्म. इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज अबाउट 4.8 into 10 raised power minus 31 के. इसका मतलब ये है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है रिएक्शन मिक्सचर में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इट गिव्स अस द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग और नॉट. If the reaction proceeds, if the value of the equilibrium constant is very high, at that time the concentration of the products is more than that of the reactants, and the reaction is almost towards the completion. कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. नाउ अगर कंपेरेबल वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इसका मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट्स है रिएक्शन मिक्सचर में उतने ही प्रोडक्ट्स भी है. ये हमें कौन बताता है? वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है हमें द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. नाउ द थर्ड, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर में reactant ज्यादा है as compared to the products, and the reaction does not proceed towards the completion. This is one. Now you have the second important application, that is it gives us the direction of the reaction. किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन, या इट इज एट इक्विलिब्रियम. नंबर सेकंड important application of the equilibrium constant is it gives us the direction of the reaction. It gives us the direction of the reaction. हमें पता है कि we have the expression of the equilibrium constant, that is suppose हमारे पास इक्वेशन है A times A plus B times B reversibly gives me CX times और C times C X times X plus Y times Y. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का दैट इज कॉल्ड X raised to power X into concentration of Y raised to power Y divided by the concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B. This is the equilibrium constant for this reaction. अगर हम यही concentration ratio एक्सप्रेस करेंगे other than that of the equilibrium state, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है इनके दरमियान, अगर हम उस वक्त ये रेशियो लिखेंगे, एट दैट टाइम इट इज नॉट कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज द रिएक्शन कोफिशिएंट. इट्स कॉल्ड एज रिएक्शन कोफिशिएंट और इट्स कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन कोफिशिएंट. व्हाट इज दैट कंसंट्रेशन कोफिशिएंट? इफ वी राइट द कंसंट्रेशन रेशियो of products and the reactants at a stage other than that at the equilibrium stage, that is called as the concentration coefficient, or that is called as the reaction coefficient. So we can write here, if the concentration ratio is written at a stage other than the equilibrium state, is called concentration coefficient or reaction coefficient.
अब है क्या concentration coefficient और reaction coefficient is denoted by the letter Q. है क्या ये? इट इज सिंपली द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स एट ए स्टेज अदर देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट. अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर लिखते हैं कंसंट्रेशन रेशियो, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन रेशियो लिखेंगे अदर देन दैट एट द इक्विलिब्रियम, उस वक्त हम उस रेशियो को कहते हैं कंसंट्रेशन कोफिशिएंट और दैट्स कॉल्ड एज द रिएक्शन कोफिशिएंट. सो रिएक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर है? क्यों किसके बराबर है? That is equal to the concentration of the x raised to power x into concentration of y raised to power y divided by the concentration of a raised to power a into concentration of b raised to power b at a stage other than that at the equilibrium. At a stage of the reaction other than the equilibrium state. उस वक्त हम उस कंसंट्रेशन रेशियो को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कोफिशिएंट और दैट्स कॉल्ड एज द रिएक्शन कोफिशिएंट. नाउ ये हमेशा ये कंसंट्रेशन कोफिशिएंट कोशिश करता है कि टू बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो दिस कंसंट्रेशन कोफिशिएंट ऑलवेज ट्राइज टू बिकम इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ना अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन कोफिशिएंट सेम है एट दैट टाइम, रिएक्शन जो है हमारी दैट इज एट इक्विलिब्रियम. सो नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ K is equal to Q, if equilibrium constant is equal to concentration coefficient, at that time the reaction जो है जितना ये रेशियो है इतना ये रेशियो है, उसका मतलब ये है कि ये और ये सेम है. द रिएक्शन जो है दैट इज एट इक्विलिब्रियम. हमेशा आप याद रखोगे कंसंट्रेशन कोफिशिएंट की कोशिश रहती है टू बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर दोनों सेम है इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है इट इज एट इक्विलिब्रियम. इफ K is equal to Q, the reaction is at equilibrium. Number second, if Q is greater than K, अगर Q है ज्यादा as compared to that of the K, लेकिन Q की कोशिश क्या है? To get converted to become equal to that of the equilibrium constant. उस वक्त क्या करेगा Q? It tries to decrease. जब ये डिक्रीज हो जाए, कम होना, ये कम कैसे होगा? जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. वो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनते हैं. तो यहाँ पर आप याद रखोगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, अगर कंसंट्रेशन कोफिशिएंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इन ऑर्डर टू बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट ट्राइज टू डिक्रीज. क्यों? tries to decrease and at that time the backward reaction is favored. At that time the backward reaction is favored. क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बनेंगे? प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द कंसंट्रेशन कोफिशिएंट. तो अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा एंड इट ट्राइज टू बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखा कि अगर कंसंट्रेशन कोफिशिएंट का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, at that time the backward reaction is favored. अब इसका अपोजिट क्या है? अगर इसका वैल्यू लेस होगा. नंबर थर्ड पॉइंट जो है, if the value of the reaction coefficient is, number third point, if the value of Q is less than K, अगर ये
कम होगा, कंसंट्रेशन कम और कोफिशिएंट कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट दैट टाइम क्यू जो है इट टेंड्स टू बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द क्यू. At that time it should increase, the value of the q it should increase so that it become equal to the k. वो कैसे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से दैट्स q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर x into concentration of y raised to power y divided by concentration of a raised to power a and concentration of b raised to power b. अब q का वैल्यू कम है, ये ट्राई करता है to increase its value so that it become equal to that of the k. अब इसका वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्यों भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एट दैट टाइम विच रिएक्शन इज फेवर्ड. प्रोडक्ट्स कहाँ पे ज्यादा बनते हैं, किस वाली रिएक्शन में ज्यादा बनते हैं, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो अगर वैल्यू ऑफ concentration coefficient कम है as compared to that of the equilibrium constant, the Q tends to increase its value, so it tends to increase its value, so the forward reaction is favored. तो हमने याद रखा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम समराइज करेंगे अब यहाँ पर. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इट गिव्स अस, इट प्रेडिक्ट्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है, या इट इज एट इक्विलिब्रियम. नंबर फर्स्ट पॉइंट आपने इसमें याद रखा कि व्हेन Q इज इक्वल टू K, when concentration coefficient is equal to the equilibrium constant, तो उस वक्त रिएक्शन कहाँ पे होगी, at equilibrium. The reaction is at equilibrium. नंबर सेकेंड पॉइंट, अगर Q जो है that's greater than K, उस वक्त क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. reaction is favored. And number third point जो है इसमें, that is if Q is less than K, at that time forward reaction is favored. These are the two important applications of the equilibrium constant. First जो है that it gives us the extent of the reaction, कितना हो रहा है, या अगर कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इन द रिएक्शन मिक्सचर. So it is the magnitude of the K which gives us that whether the concentration of the reactant is more or concentration of the product is more. अगर वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बहुत ज्यादा, उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट. अगर क्योंकि उसका वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अगर उसका वैल्यू ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो उस वक्त रिएक्शन जो है इट इज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन. अगर कंपेरेबल वैल्यू होगा, उसका मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स है उतने ही प्रोडक्ट्स भी है, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, अगर इसका वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन नहीं हो रही है, उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दैट इट प्रिडिक्ट्स एज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, किस डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन. उसके लिए हमने क्या कहा कि कंसंट्रेशन कोफिशिएंट. कंसंट्रेशन कोफिशिएंट वो होता है कंसंट्रेशन रेशियो at a stage other than that at the equilibrium state. अगर equilibrium state में है concentration ratio, उसको हम कहते हैं equilibrium constant. अगर concentration ratio है other than that at the equilibrium state, that's called as concentration coefficient. अब concentration coefficient and it always tries to become equal to that of the equilibrium constant. So अगर इनका वैल्यू बराबर होगा तो reaction is at equilibrium. अगर ज्यादा होगा तो reaction is backward reaction is favored, and if it's less than is less, the forward reaction is favored.
Inshallah, in the next video lecture, we will go through the third important application of equilibrium constant. Thank you so much.